Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about 12th class chapter Deep Water, and we are doing the revision of it. Deep Water, it was written by William Douglas, and this is somewhere his own life story, and which he was highlighted about his one of the most important, you can say, the memories of his life, and how the memory was affected his entire life. So William Douglas was around 10-year-old when he was decided to swim. The YMCA pool was safe for swimming. Actually, why he was discussing in the very starting about it, as you know, in this he was discussing about his one of his greatest phobia, that is phobia of water. He have the thought that the water can kill him, and this the entire chapter was completely dedicated to that memory, that phobia. And in this chapter he was highlighted how he was able to overcome from this kind of phobia, and how that phobia affected his life entirely, and why he decided to change his life by removing that phobia from his life. So let's start with the main important element. As you know that the chapter was divided into three parts: how the fear entered in his life, how he was able, how the fear affected his life, and how he was able to remove that fear in his from his life. Okay, so entire chapter was divided into three different parts. So let's start how the fear enters in his life. Okay, so he was only 2-3 feet deep of shallow and the 9 feet at deep, and he was this is the entire thing about YMCA pool. Okay, so most important thing, why he was having a fear of water. So the narrator had an aversion of going in water. एक डर था, aversion means the fear. क्यों उसको डर था, वो पानी में जाने से क्यों डरता था? इट स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड. ओके, जब वो 3-4 साल का था तब से उसके अंदर वो डर है. और जब भी वो वाटर बॉडीज के पास जाता था, यानी कि वो पूल के पास या नदी के पास या लेक के पास जब भी वो जाता था, तो वो फियर जो है उसके माइंड में अराइज हो जाता था. अब वो कौन सा फियर था और क्यों था, वो कब आया था? वेरी फर्स्ट टाइम इट वॉज व्हेन ही वॉज अराउंड 2-3, ही वॉज 4 or 3 years old. Okay, so he was discussing about his past memory. He stood with his father in the surf when the wave swept over him. Okay, when he was around 2-3 years old, he went for the beach holiday with his father. And when he was standing on the beach, a big wave came over there, and the water of the wave completely covered him up from, उसके कहते हैं ना कि उसके ऊपर से वो पूरी वेव जो है उसने वेव ने कवर कर लिया. और जब वो वेव चाहे 1 सेकेंड के लिए 1-2 seconds आर देयर ओनली, at that moment he was not able to breathe. So first time he realized that the water can kill. The first time उसके माइंड में वो डर आया, क्योंकि वो जब 1-2 सेकेंड के लिए ही सही, बट ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीद इन दैट वाटर. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो डर उसके माइंड में बैठ गया कि जो वाटर है वो किल कर सकता है. अंडरस्टूड? He was almost buried in the water. He developed a fear of the for the huge waves. समझ में आ गया? जो मतलब वो ह्यूज वेव्स का जो डर है उसके अंदर बैठ गया. सो ही वेंट टू YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग. अब देखो, एक्चुअली जब वो थोड़ा सा, जब ये वाला इंसिडेंट कब का है, जब वो 3 to 4 year old का है. ओके, लेकिन जब वो 10 साल का था तब वो YMCA पूल गया, क्योंकि उसको उस टाइम पे वो लगा कि वो हो सकता है मेरा चाइल्डहुड फियर हो, और वो उस डर को अपने माइंड से हटाना चाहता था. और एक तरह से वो सोचता है कि ओके, दैट मे बी इट वॉज माई चाइल्डहुड फियर. सो ही डिसाइड टू लर्न स्विमिंग इन YMCA पूल. ओके, अब यहाँ पे पूल के बारे में क्या बताया है, दैट इट वॉज 2-3 feet डीप एट सेलो. ओके, सो वो था, यानी कि जो YMCA पूल था वो ज़्यादा वैसा नहीं था, वो सिर्फ कैसा था, वो 2-3 feet का था. और YMCA पूल वॉज सेफ फॉर स्विमिंग. समझ में आ गया? एंड व्हेन ही वॉज अ 10 or 11 year old ही डिसाइड टू swim. So now the most important thing, how the fear enter in his life.
ओके, हम इसको थोड़ा और करते। फर्स्ट टाइम कब उसके माइंड में डर आया था, जब वो 3 या 4 साल का था। उस टाइम पे वो डर उसके माइंड में आया था जब वो अपने फादर के साथ बीच हॉलीडे के लिए गया था। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज फ्राइटेंड। अब जब वो 11 to 10 ईयर का हुआ था, उस टाइम पे उसने डिसाइड किया कि मैं वो करूँगा, मैं स्विमिंग सीखूंगा। सो व्हाट ही डिड, ही डिसाइड टू गो टू YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग। ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, आपको उसको कह सकते हैं, मिस एडवेंचर हुआ था, जिसने उस डर को और ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कर दिया था। क्लियर। एक्चुअली वो चाहता था कि वो अपने उस डर को हटाए, बट उस YMCA पूल में उसके साथ एक मिस फॉर्चून अंडरस्टैंड एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण वो डर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था उसके माइंड में। क्या हुआ था, a big bully boy tossed him into the deep end of the swimming pool. So what he was discussing about one day incident, that he was, when he was there in the swimming pool in YMCA, he was sitting on the edge of the swimming pool, and suddenly a big boy pick him up and throw into the swimming pool. Clear. He was frightened and found himself at the bottom, and you can understand, एक बहुत strong सा बच्चा जब एक कमज़ोर, एक स्किनी से बच्चे को जब फेंकेगा, तो वो क्या होगा कि वो एकदम से उसने उसको फील हुआ कि वो डर गया बहुत ज़्यादा, और उसने अपने आप को बॉटम में पाया। क्लियर। हालांकि ये दिखाया गया कि YMCA पूल जो है, वो जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था, वो कितने फीट का था, 2-3 फीट डीप था। लेकिन जहाँ पे उस बिग बॉय ने उसको थ्रो किया था, इट वॉज 9 फीट डीप। ओके, सो ही ग्रू पैनिक, ही वॉज सफोकेटेड, ही ट्राइड टू क्राई, मतलब वो चिल्लाना चाहता था, वो रोना चाहता था, बट ही वॉज नॉट एबल टू, बिकॉज ही वॉज इन द वाटर। ओके, ही हैड लॉस्ट हिज ब्रेथ एंड वेंट डाउन एंडलेसली, मतलब वो नीचे ही, वो उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो नीचे 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 जाए जा रहा है, एंड ही वॉज नॉट एबल टू कम अप ओवर द water. His heart was pounding, he was paralyzed. Actually, he was not paralyzed, he feels that he was paralyzed. क्यों? क्योंकि वो बार बार जब भी वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा था, जब आप समझ सकते हैं कि जब आप जनरली आप अपने हाथ पैरों को चलाते हैं, तो उस टाइम पे आप इतना एग्जॉस्टेड नहीं होते हो, बट व्हेन यू आर इन द वाटर एट द टाइम, आपकी फोर्स जो है वो डबल आपको लगती है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही वॉज एग्जॉस्टेड अलॉट। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ पैर जो हैं वो सुन्न हो गए हैं, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा पैनिक कंडीशन, और हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप अप कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज्ड होने वाला है। तो उसने एक डिसाइड किया कि क्यों ना एक डीप बॉटम से जाके मैं एकदम जंप करके ऊपर आने की कोशिश करूँ। ही जम्प्ड विद ऑल हिज फोर्स बट इन वेन। क्लियर। सो क्या हुआ कि वो बार बार उसने 2-3 थ्राइस एंड 4 टाइम ही ट्राइड टू जंप अप अपवर्ड, बट एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटली इन वेन। ऑल एफर्ट्स एंडेड, ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अब देखो, बहुत ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वो कर रहा था, हाथ पैर चला रहा था, तो अचानक से वो उसको बहुत ज़्यादा ना, कहते हैं कि पानी के अंदर इनहेल करने की और एक्सहेल करने का, सांस किस तरह से अपने आप को रोका जाए, ही वॉज नॉट एबल टू लर्न दैट मच, बिकॉज इट वॉज हिज स्टार्टिंग टाइम, एंड उसी टाइमिंग में उसके साथ तो इंसिडेंट हो गया। सो ही वॉज नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन द वाटर। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो वो पैनिक हो गया, एंड वो ही बीइंग अनकॉन्शियस। वो एक प्रॉपर सिचुएशन को दिखाया गया है कि एक डीजीनेस उसके सामने आ जाती है। पहले वो एकदम से चमक होती है, वो फिर वो धीरे 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 जो चमक है वो एंडेड हो जाती है, और वो ऐसा लग रहा है कि दैट ही वॉज इन हिज मदर्स लैप। ठीक है, वो अपनी माँ की गोदी में सो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, ही गॉट अनकॉन्शियस। Clear. So this is the incident which happened with him in the swimming pool, YMCA swimming pool. Okay. So next, what happened? He come When he came to consciousness, he found him lying on his stomach in the edge of the pool. So someone maybe कुछ maybe किसी ने उसको फिर वहाँ से स्विमिंग पूल से उसको निकाल लिया होगा। जब उसको कॉन्शियसनेस हुआ, he was on the edge of the pool. For days, a fear of water haunted him. The fear stayed with him for years. मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस इंसिडेंट को लाइफ वो भूल ही नहीं पाया, और उसकी जो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट उसके माइंड पे और हर्ट पे उस चीज़ का हुआ। क्लियर। क्या दिखाया है उसमें, स्टोरी में बताया गया है कि ही वॉज हैविंग अ हाई फीवर फॉर अ वीक एटलीस्ट।
और बहुत टाइम तक वो स्कूल भी नहीं गया क्योंकि वो डर उसके माइंड में हमेशा, वो अपने रूम में अपने आप को उसने बंद कर लिया, एंड ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक विद एनी वन एक्सेप्ट द पेरेंट्स। सो कहीं ना कहीं उस डर ने उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको ग्रैब कर लिया, एंड ही वॉज नॉट एबल टू बी नॉर्मल विद एनी वन। सो फाइनली अब यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, एट दैट टाइम उसको लगा कि इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, बिकॉज जैसे उसके फ्रेंड्स जो थे, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो है वो बाकी वो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जाते थे, जैसे फिशिंग करना, बोटिंग करना एंड राफ्टिंग करना, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस, बिकॉज जब भी वो वाटर बॉडीज़ के पास जाता था, ही द फियर enter in his mind a lot, and because of that reason he was not able to enjoy that activities. But one day he decide कि नहीं, मुझे इन अपने इस माइंड से अपने अपनी लाइफ को enjoy करना है as the other do. So he decide to learn swimming. So finally he got an instructor and decided to learn टू स्विम। क्लियर। सो उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और कहा, उसने उस इंस्ट्रक्टर को कम्प्लीटली वो अपना पूरा इंसिडेंट बता दिया कि वाई द फियर एंटर, आई हैव अ फियर ऑफ वाटर। एंड मतलब कुछ लोग होते हैं कि अपने उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते कि उसके अंदर अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स है, बट जो डगलस है ही डिक्लेयर एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द इंस्ट्रक्टर, बिकॉज उसको पता है कि जब तक मैं उस फियर के बारे में नहीं बताऊंगा, ही विल नॉट एबल टू हेल्प मी इन एवरी वे। क्लियर। सो दिस इज द रीजन वाई ही टोल्ड हिज फियर टू द इंस्ट्रक्टर। अब हाउ हिज इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम टू लर्न स्विमिंग, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वो डर आया कैसे, उस डर का इफेक्ट उसके लाइफ में क्या पड़ा, एंड नाउ वी विल डिस्कस हाउ द फियर get away from his life and how he was able to remove his fear from his life. So he hired an instructor to make him learn how to swim. So उसने इंस्ट्रक्टर ने कैसे किया, इंस्ट्रक्टर अटैच्ड रॉप टू द नरेटर्स बेल्ट, मतलब उसके बेल्ट पे उसने क्या किया, एक जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे ये स्विमिंग पूल है, क्लियर, दिस इज द स्विमिंग पूल, और यहाँ पे इस एज पे और एक इस एज पे उसने एक रोप बांध दी, क्लियर, और इस रोप को एक पुली के साथ अटैच कर दिया, एंड दिस पुली वॉज अटैच्ड विद द बेल्ट ऑफ नरेटर। समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि ये पुली जो है वो बेल्ट के साथ, नरेटर के बेल्ट के साथ लगी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जब वो इधर से जाएगा तो भी उसको ये पता है कि मैं डूबूंगा नहीं, और ये इधर जाएगा तो भी उसको पता है कि मैं डूबूंगा नहीं, बिकॉज दिस ही वॉज टाइड विद द रोप, और दिस इज अ रोप, एंड वो ऊपर ऊपर रोप है, सो ही विल नॉट ड्रॉन इन द वाटर। सो वो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने उसके साइकोलॉजी के साथ खेला, एंड ही वॉज एबल टू मेक हिम एंटर इन द वाटर। ओके, द रोप वेंट थ्रू अ पुली, ही हेल्ड इट टू द एंड ऑफ द रोप एंड वेंट बैक एंड फोर्थ। ठीक है, वो आगे जाना और पीछे जाना, वो बार बार उस रोप के थ्रू वो कर रहा था, अप एंड डाउन इन द पुल, वो नीचे भी जा रहा था, वो नीचे जा रहा था, फिर वो ऊपर आ रहा था। रीजन कैसे, बिकॉज ही वॉज हैविंग अ थॉट इन हिज माइंड दैट ही विल नॉट ड्रॉन इन द वाटर बिकॉज ऑफ द दिस रोप वॉज टाइड ऑन हिज बेल्ट। क्लियर। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, मतलब एक्सहेल करना और इनहेल करना, वो प्रोसेस जो है वो वाटर में किस तरह से किया जाता है, तो इंस्ट्रक्टर ने उसको प्रॉपरली सिखाया। he also taught him to raise his nose and inhale। क्लियर, वो एक्सहेल और इनहेल करने का जो पूरा प्रोसेस है किस तरह से करना, वाटर के अंदर जाके फिर वाटर के बाहर आके, दैट मीन्स हाउ टू डू दिस, वो कहते हैं ना कि एक स्टेप बाय स्टेप ही मेक हिम लर्न एवरीथिंग हाउ टू स्विम। फाइनली ही बिकम अ कंप्लीट स्विमर। ओके, but he still feared when he was alone in the pool, he was still not satisfied। मतलब देखो अभी भी जब उसने इंस्ट्रक्टर ने बता दिया कि नहीं आपको स्विमिंग अब आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो जब भी कभी भी वो अकेला, जब इंस्ट्रक्टर नहीं होता था आसपास, he never entered in the swimming pool because he still have that fear in his mind। Understand? So once once he dived off a dock at ट्रिग्ड आइलैंड एंड स्वम 2 miles अक्रॉस अ लेक। अब देखो एक बार क्या हुआ, जब उसने सोचा कि नहीं द इंस्ट्रक्टर वॉज नॉट देयर, ही एंटर इन दैट स्विमिंग पूल, उसने उस स्विमिंग पूल में एंटर किया, एंड
बिकॉज उसने वो जो टेक्निक उसने सीखी थी, उसने कॉन्फिडेंटली अपने आप को कॉन्फिडेंट किया, बिकॉज ही वॉन्ट टू फेस दैट फियर एंड ही वॉन्ट टू रिमूव दैट फियर डेडिकेटली. सो ही डिसाइड टू एंटर इन द पूल, और वो उसने एंटर किया. और जैसे जैसे उसने इंस्ट्रक्टर ने उसको बताया था किस तरह से सांस लेना है, किस तरह से सांस छोड़ना है, हाथ पैरों की मूवमेंट किस तरह से करनी है, सो ही वॉज एबल टू क्रॉस द स्विमिंग पूल विदाउट एनी हेल्प ऑफ पुली, विदाउट एनी हेल्प ऑफ रोप, विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर. तो इस तरह से उसने 2-3 टाइम्स को अपने स्विमिंग पूल को क्रॉस किया. जब उसको ये लग गया कि हाँ नाउ आई एम एबल टू, आई एम अ गुड स्विमर, तो उसने क्या किया, वन ही डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट द ट्रिगर्स आइलैंड. ट्रिग्स आइलैंड के ऊपर उसने एक लेक थी, वहाँ पे उसने उस माइल्स को क्रॉस किया. यानी कि जब पहले सबसे पहले हाउ ही टेस्टेड हिमसेल्फ इन द स्विमिंग पूल. आफ्टर दैट ही टेस्टेड इनटू द लेक. लेक में उसने अपने आप को टेस्ट किया दैट वेदर आई एम एबल टू स्विम or not. And finally he was able to swim, and after that he went to a sea. अब वहाँ पे उसने अपने आप को चेक किया. एंड फाइनली ही वॉज एबल टू कॉन्क्वेयर हिज फियर ऑफ वाटर. सो कॉन्क्वेयर का मतलब होता है जीतना. एंड फाइनली वो उसने अपने डर पर काबू पा लिया. सो दिस इज द एंटायर चैप्टर. आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड. सो इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगर आपको लर्न करने का तरीका है. सबसे पहला फियर आया कैसे, सेकेंड इफेक्ट ऑफ द फियर ऑन हिज लाइफ, एंड थर्ड हाउ द फियर remove from his life. So this is all in this video. I hope you completely understand the chapter. The given question you have to do in your fair notebook. Thank you.